Good morning, ladies and gentlemen. Namaskar, Adab, Sat Sri Akal. We are so delighted and honored to be having each one of you on board for the International Day of Yoga 2020. Well, ladies and gentlemen, though it's an absolute honor and delight for us, at the same time, we'll just take you towards the background of the International Day of Yoga. On the suggestion of our respected Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, the United Nations Organization adopted the resolution of declaration that the 21st of June every year to be celebrated as International Day of Yoga. The world started celebrating International Day of Yoga since the year 2015, and Shri Narendra Modi ji participated at Rajpath, New Delhi. The second International Day of Yoga, that is the 21st of June 2016, was celebrated at Chandigarh in the presence of Narendra Modi ji. The third International Day of Yoga was celebrated on 21st of June 2017 in the city of Nawab, Lucknow. The fourth International Day of Yoga was celebrated on the 21st of June 2018 in Dehradun. The fifth International Day of Yoga was celebrated on 21st of June at Ranchi in the presence of Shri Narendra Modi ji. According to the plan, ladies and gentlemen, the sixth International Day of Yoga was to be celebrated in the beautiful place Leh, the city of Leh, in the presence of Narendra Modi ji too. But because of COVID-19, the sixth International Day of Yoga is being celebrated under the shadow of COVID-19 not only in India but throughout the world. As the entire world is adapting to the change, we are too. And this year we are so happy and delighted to be informing all of you that the theme of this year International Day of Yoga is Yoga with Family, Yoga at Home. I think the world is going through this change and we have adapted the change of being digital and being virtual. All of you are here with us. We are going to do yoga together. We are going to celebrate this unity together. So looking forward to see all of you doing yoga with us. And I'm sure all of you are as excited as I am here today to be practicing yoga, something which is very important for us, which is very essential and vital for the entire world right now, and not just right now, for everyday well-being, for the physical well-being, for the emotional well-being, and for the mental well-being. So I would request all of you to take some time out for yourself on a daily basis and practice yoga. Well, talking about today, once again, on behalf of MLDC Management Leadership Development Center, I would like to welcome each one of you and thank each one of you for taking some time out for yourself and some time for ourselves here today, this morning, in practice with the Yoga Guru. We have with us Dr. Johari Lal, on-screen President, MLDC Director, MLDC, Shri Pratik Pathak, and Yoga Guru, of course. I would request Dr. Johari Lal, former Director, HR, ONGC, and Oil India Limited, to throw some light on how yoga can make a big difference and can be incorporated in our lives on a daily basis. आप सभी का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत। परिस्थितियों के साथ, समय के साथ परिस्थितियां बदलती रहती हैं और आज भी इस प्रोग्राम में परिस्थितियां बदल गई। पिछले 5 प्रोग्राम जो हुए, हर प्रोग्राम में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी स्वयं उपस्थित रहे। इस साल भी उन्होंने उपस्थित होना था, लेह से प्रोग्राम करना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इस प्रोग्राम को ऑनलाइन करना पड़ा। साथियों, योग, प्राणायाम, ध्यान के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या आप उसका अपने जीवन में उपयोग करते हैं कि नहीं है। इस प्रोग्राम का एक उद्देश्य ये भी है कि आपके मन में
एक संकल्प दिया जाए कि आज के दिन हम प्रण करते हैं कि इसको अपने जीवन में उतारेंगे। और इससे आपको पहले मालूम है कि बहुत सारे लाभ होते हैं, क्योंकि जो चीज आप जानते हैं यदि इसको अमल में लाएंगे तभी फायदा है। कहा है कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। इट इज प्रैक्टिस दैट मेक्स ए मैन परफेक्ट। हम लोग फ्रॉम मैनेजमेंट लीडरशिप डेवलपमेंट सेंटर एंड बाल आरोग्य की तरफ से पिछले 4 साल से इस प्रोग्राम को हम दिल्ली में कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमने बोकारो में भी किया था। एंड द फर्स्ट प्रोग्राम वाज इनॉग्रेटेड बाय श्री D.K. Sharaf, the Assembly of ONGC. Now we have decided that we should organize this program online for the benefit all of you. साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, योग विश्व को भारत की देन है और योग का वर्णन लगभग 5000 से पहले जो हमारा ऋग्वेद है उसमें आता है, और ऋग्वेद के बाद इसका वर्णन जो बाद में उपनिषद लिखे उसमें भी आता है। लेकिन इसका प्रस्तुतिकरण बाद में योग पतंजलि ने लगभग 2000 पहले एक योग सूत्र लिखा था और उसमें योग के सूत्र लिखे कि शरीर के बारे में, मन के बारे में, ध्यान के बारे में, और जिसको कहा कि अष्ट योग जो कि जीवन की कला है। अष्ट योग में यम, नियम, दैट इज अ डिसिप्लिन ऑफ लाइफ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में लिखा। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, विड्रॉल, धारणा, कंटेम्पलेशन, ध्यान और समाधि, ये अष्ट योग है। और इससे शरीर से लेकर के, मन से लेकर के, बुद्धि से लेकर के और आत्मा तक की बात कही गई है। सो जैसा कि हम जानते हैं, खास करके जो हमारे हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, स्पिरिचुअल हेल्थ है, तो चारों तरह के जो हमारी हेल्थ है उसके एक समन्वय करती है, और जिससे कि हमारा शरीर बलवान बने, उसमें जो बीमारियां आती है उनको झेलने की क्षमता पैदा करे। इट इज बोथ क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव, इट इज प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव बोथ। सो किस तरह से इसका निदान कर सकते हैं और बीमारी होने पर भी किस तरह से उसको दूर किया जा सकता है। सो योगा, प्राणायाम और ध्यान तीनों के बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताया जाएगा कि किस तरह से हम योग करें, प्राणायाम करें और ध्यान करेंगे। इसमें हम एक डेवलपिंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि इस समय में एक पॉजिटिव माइंड रखना बड़ा जरूरी है। काफी लोग उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। शायद ऐसा होता होगा कि उन्होंने सपने जो बुने हैं वो सपने पूरे नहीं हो रहे हैं। साथियों, जो समय है, समय भी बीतता जा रहा है, बीत जाएगा। इस समय हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, अच्छे दिन भी आएंगे। तो हम अपने मानसिक संकल्प से, मानसिक दृढ़ता से और अपने करेज और कन्विक्शन से इस समय को अच्छी तरह से बिताएं, और इसकी प्रेरणा हमें योग और प्राणायाम के द्वारा मिलेगी। मैं समझता हूं कि इस प्रोग्राम से आप सभी को बहुत बहुत लाभ मिलेगा।
और लाभ जब भी मिलेगा जब उसको आप अपने जीवन में उतारेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, Dr. Jawharilal, for throwing light on how yoga can make a big difference in our lives. We will really be looking forward to hear more in the coming sessions. Ladies and gentlemen, presenting next up here on the screen, I would like to call a personality who has touched millions and billions of lives through his practice of yoga and through his teachings on yoga. I would request all of you to please put your hands together as we welcome Yogi Gulshan Kumar up here on screen to be sharing with us the benefits of yoga, especially during today's time wherein everyone is facing challenges, everyone is trying to cope up with the environment around them. Please put your hands together as we welcome Yoga Guru, Yogi Gulshan Kumar. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सारा विश्व सुखी हो, सारा विश्व निरोगी बने, ऐसी कामना हम करते हैं। आज के इस छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सबसे पहले मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आज पूरा विश्व कोरोना की इस महामारी से जूझ रहा है। इस कोरोना महामारी की इस लड़ाई में योग प्राणायाम कहाँ तक कारगर सिद्ध हो सकते हैं, इसको आज सारी दुनिया के लोग स्वीकार कर रहे हैं। जो लोग क्वारंटीन में गए हैं वो क्वारंटीन में रहते हुए कहीं ना कहीं प्राणायाम कर रहे हैं, लंग से स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। जो लोग आइसोलेशन में हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं योग की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अभी तक कोरोना की कोई वैक्सीन, कोई इलाज हमें नहीं मिल पाया है। पूरा विश्व उस मेडिसिन को, उस वैक्सीन को ढूंढने में लगा हुआ है। कई जगह पर इसके शोध कार्य चल रहे हैं। एक उम्मीद योग पर आकर के लोगों की टिकती है कि हम अगर कोरोना को हराना चाहते हैं तो योग के माध्यम से हम अपने भीतर की इम्यूनिटी को बेहतर कर सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी प्रतिरक्षण प्रणाली होती है जिसको यदि हम मजबूत कर लेते हैं तो हम कोरोना जैसी बीमारी की जंग से बाहर आ सकते हैं। योग में ऐसी बहुत सारी विधियां हैं, जैसे षटकर्म की क्रियाएं हैं, शारीरिक शोधन की क्रियाएं हैं, कुंजर क्रिया है, जल नेति है, सूत्र नेति है। इन विधियों के द्वारा जो एक क्लींजिंग प्रोसेस है, हम अपने नेजल पैसेज को क्लीन करते हैं जल नेति के द्वारा। अगर हमारे नेजल नॉस्ट्रिल हमारे ब्लॉक हो गए हैं, उसको हम रिमूव करते हैं सूत्र नेति के द्वारा। अगर हमारे थ्रोट्स में कोई इन्फेक्शन है, अगर लंग्स में इन्फेक्शन है, तो उसको हम दूर करते हैं कुंजल क्रिया के द्वारा। इसके अतिरिक्त हमारे योग में बहुत सारी यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं हैं, जैसे
ग्रीवा शक्ति विकासक गर्दन की क्रियाएं हैं, जैसे बाहों की क्रियाएं हैं, भुजवल्ली शक्ति विकासक क्रिया है, वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया है। इन सूक्ष्म योगिक क्रियाओं के माध्यम से हम अपने भीतर की इम्यूनिटी को और बेहतर कर सकते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुझे यही संदेश देना है कि अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए जब हम अपनी गर्दन से संबंधित क्रियाओं का अभ्यास करते हैं तो ये लगता है जैसे हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी से बच जाएंगे। इतना ही नहीं, गर्दन की क्रियाओं को करते समय ऐसा पाया गया है, जो हमारी मॉडर्न साइंस कहती है कि हमारी गर्दन के आसपास काफी ऐसे लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं। लिम्फ ग्लैंड्स हमारे एक्टिव होते हैं जो गर्दन के आसपास पाए जाते हैं। इसी तरह जब हम बाहें ऊपर करने वाली योग की विधियों का प्रयोग करते हैं, हमारी आर्म पिट के नीचे भी बहुत सारे लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं। इन लिम्फ ग्लैंड में से कुछ रसायन निकलते हैं जिसको लिम्फोसाइट कहते हैं। जैसे जैसे लिम्फोसाइट बॉडी के अंदर इंक्रीज होता है तो ये हमारी प्रतिरक्षण प्रणाली को मजबूत करता है। हमारे भीतर अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया बाहर से शरीर के भीतर पहुंच जाता है, ये लिम्फोसाइट जो एक हमारी रक्षा प्रणाली है, ये उसके साथ फाइट करती है। और ये लिम्फोसाइट का एक और पार्ट्स है जिसको WBC कहते हैं, वाइट ब्लड सेल, पूरा इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट इन वायरस का भक्षण कर देता है। योग करने से हम अपने अंदर इस प्रकार की जो इम्यूनिटी है वो डेवलप कर लेते हैं। योग में जब हम ताड़ासन करते हैं, सीधा इफेक्ट ताड़ासन का कहाँ पर हो रहा है? सीधा असर हमारे फेफड़ों के ऊपर ही होता है। फेफड़ों में जो हमारी वायु लेने की क्षमता है वो बेहतर हो जाती है। एक सामान्य व्यक्ति जो योग के बारे में कोई जानकारी नहीं रखता, प्राणायाम के बारे में उसके पास कोई नॉलेज नहीं है, ऐसा व्यक्ति जब सांस लेता है तो उसकी सांस उसके अंदर जो वायु पहुंचती है मुश्किल से 500 सीसी यानी 500 मिलीलीटर एक सांस लेने में उसके अंदर वायु का प्रसार होता है। लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं, योग की अन्य विधियों का अभ्यास करते हैं, हमारे लंग्स के अंदर 9 टाइम्स अधिक वायु का प्रसार होता है। हमारे लंग्स के अंदर 4500 ml वायु पहुंचती है। जब इतना अधिक मात्रा में वायु का प्रसार हमारे फेफड़ों में होता है तो हमारे भीतर फेफड़ों में संक्रमण होने की संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। ऐसी दशा में हम अपने लंग्स को हेल्दी बना लेते हैं। हमारे अंदर जो हमारा वक्षस्थल है, इस वक्षस्थल के बीचों बीच एक और ग्रंथि है, थाइमस ग्लैंड इसको कहते हैं। ये थाइमस ग्लैंड भी जब हम वक्ष स्थल से संबंधित कुछ विधियों का अभ्यास करते हैं, जिसमें हम अपने लंग्स को ज्यादा से ज्यादा वक्ष पर प्रयोग करते हुए स्ट्रेचिंग करते हैं, ऐसी अवस्था में हमारी जो थाइमस ग्रंथि है वो सक्रिय हो जाती है और सक्रिय हो जाने से हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। इसलिए इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ाई लड़ने के लिए हमें चाहिए कि खूब हम योग से जुड़े, खूब हम प्राणायाम करें, खूब हम ताड़ासन करें, गोमुखासन करें और बहुत सारे अन्य साधन हैं जो योग के द्वारा
हम अपनी प्रतिरक्षण प्रणाली को मजबूत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कपालभाति कर सकते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम खूब करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम खूब करें। भस्त्रिका प्राणायाम करने से क्या होगा कि जो हम श्वास भीतर लेते हैं वो श्वास हमारे लंग्स के जो पोस्टीरियर लोब्स हैं, लंग्स का जो लेटरल लोब्स है, वहां तक ऑक्सीजन पहुंचती है। कोरोना के केसेस में ये देखा गया है अब तक कि कोरोना हमारे लोअर लंग्स के डेप्थ में चला जाता है, वहां से ये संक्रमण फैलाता है। अगर हम भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, कैसे, इसको थोड़ा सा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सांस वक्ष में भरना, इसको आराम से छोड़ दो, भरो, छोड़ दो, भरो, छोड़ दो। इस तरह से हम अपनी लंग्स के अंदर एयर का इनटेक बढ़ा करके लंग्स की डेप्थ तक एयर को पहुंचा करके लोअर लोब्स को एक्टिवेट कर लेते हैं। हमारे जो पोस्टीरियर लंग्स के लोब्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और जब ये एक्टिव हो जाते हैं तो कोरोना होने की संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। इस प्रकार से हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लेते हैं। इसके अतिरिक्त इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक कॉमन प्रोटोकॉल दिया गया है योगा प्रैक्टिशनर्स के लिए, जो कोविड-19 की इस लड़ाई में बड़ा सहायक सिद्ध होने वाला है। भुजंग आसन करें, शलभ आसन करें, ये सारे आसन हमें योग की इस कोरोना की लड़ाई में हमारे लिए सहायक हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, भस्त्रिका प्राणायाम करें, कपालभाति प्राणायाम करें। इसके बाद ध्यान जरूरी है, मेडिटेशन जरूरी है। मेडिटेशन आपके मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है। जैसे अभी लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन में लोग घर में कैद होके रह गए, बचाव तो करना ही था ना, तो कैद होके रह गए, दिमाग बॉडी एक्टिविटीज बंद हो गई, किसी की कमर में दर्द हुआ होगा, किसी को मानसिक तनाव हुआ होगा। इन सब से बाहर निकलने के लिए मेडिटेशन जरूर करें। मेडिटेशन करने के लिए आपको थोड़ा सकारात्मक होना पड़ेगा, बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड, आईज क्लोज करते हुए आप निरंतर ओम चैंटिंग कर सकते हैं। इस प्रकार से आईज क्लोज कर लें। आप सभी आईज क्लोज करते हुए डीप इनहेल करें। ओम चैंटिंग इस प्रकार से करनी है। इस प्रकार से एक संकल्प करना है, हम अपने को निरोगी बनाएं, स्वस्थ रहें, हमारे विचार शुद्ध बने, दूसरों की हम मदद करने के योग्य बने। यही संदेश इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर
मुझे आपको देना है। धन्यवाद। Next up on screen in front of each one of you here are extended family members who have joined us here this morning, taken out some time for the emotional, mental and physical well-being. Up here on screen, I would request Swami Yodarshan Dasji of Swami Narayan Gurukul Rajkot to please join us on screen. So over to you, sir. नमस्कार, हम श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान से है और हमारा नाम स्वामी योग दर्शन दास जी है। आज हम विश्व योग दिन पे इकट्ठा हुए हैं और आज हम आपको सीनियर सिटीजन कैसे अपना इम्यूनो सिस्टम बढ़ाए, कैसे अपनी स्ट्रेंथनेस बढ़ाए और कैसे ऑक्सीजन का इंटेक ज़्यादा कर पाए, वो योग, प्राणायाम और कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइज के माध्यम से हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए साथ में बैठते हैं और पहले हम नेक की गर्दन की एक्सरसाइज करते हैं। दोनों हाथों को ऐसे कमर के ऊपर रखें और पाँव को ऐसे सुखासन में या फिर अर्ध पद्मासन, कोई भी आसन आप रह सकते हैं। गहरी लंबी सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर की ओर और सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे, फिर सांस लेते हुए ऊपर और नीचे। इससे क्या होगा, आपकी जो गर्दन की हड्डी है उसको एकदम अच्छी तरह से मसाज मिलेगा। और नीचे। नेक्स्ट, दोनों साइड में ऐसे 180 डिग्री पे गर्दन को घुमाइए। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड और सांस छोड़ते हुए वापस राइट साइड। सांस लेते हुए सीधा और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। रिलैक्स। अब ऐसे राउंड में घुमाना है पूरी गर्दन को। सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर की ओर और सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर ऊपर। जितना हो सके उतना बड़ा सर्कल बनाना है गर्दन से। नेक्स्ट साइड। 1, सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। फिर से ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे। रिलैक्स। ये जो एक्सरसाइज है वो खास करके मस्तिष्क के ऊपर के भाग को और मस्तिष्क के नीचे पिछले वाले भाग को, जहां से हमारी सारी नर्व्स जो है, जो हमारे पूरे शरीर को संदेशा पहुंचाती है, उसके लिए ये जो एक्सरसाइज है बहुत अच्छी है। और साथों साथ जिसको ये गर्दन की तकलीफ बहुत रहती हो उसके लिए तो ये एक्सरसाइज बहुत ही बेस्ट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, दोनों हाथ को ऐसे आगे रखें, एकदम ऐसे मुट्ठी बनाए और राउंड में, कलाई में से ऐसे राउंड में घुमाइए। 1, 2, 3, 4, 5 and 6। रिलैक्स। अब रिवर्स में 1, 2, 3, 4, 5 and 6। रिलैक्स। दोनों हाथ है उसको ऐसे शोल्डर के ऊपर रखें। ये जो एक्सरसाइज है वो खास करके हमारे शोल्डर के लिए बहुत ही उपयोगी है। जिसको फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ हो वो ये आसन अवश्य करे, ये एक्सरसाइज अवश्य करे। ठीक है, दोनों हाथों को ऐसे आगे की ओर, दोनों कोहनियां एक दूसरे से टच होए ऐसा प्रयास करें। सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। जितना हो सके
उतना बड़ा सर्कल बनाए दोनों कोहनियों से। सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। ऐसे ही रिवर्स में करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, जितना हो सके उतना बड़ा सर्कल बनाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे। जब दोनों कोहनियां आगे आए तब एक दूसरे को टच करवाने की कोशिश कीजिए। फिर से सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। दोनों हाथों को आगे की ओर ऐसे सीधा कीजिए। दोनों पंजे की 5-10 उंगलियां को ऐसे वाइड करें। और अब क्या करना है, सिर्फ पहले देख लीजिए, सिर्फ ऐसे जो फर्स्ट जॉइंट है वहां से ही उंगलियां मुड़नी चाहिए ऐसे, और पूरी ताकत से, जैसे सामने कोई हमारा दुश्मन है और हम उसका बदला ले रहे हैं। ठीक है, चलिए 1 पूरी ताकत से, 2 3 4। रिलैक्स। इससे जो है ये जो हमारे मसल्स है, और साथों साथ होता क्या है, जब हमारी उम्र बढ़ती जाती है तब हाथ की ग्रिप जो है वो लूज होती जाती है। तो अगर हम ये एक्सरसाइज रोजाना करेंगे तो हाथ की ग्रिप भी आ जाएगी, हाथ की स्ट्रेंथनेस भी आ जाएगी, और ये जो मसल्स है वो एकदम मजबूत बनेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, दोनों पैरों को ऐसे वाइड करना है। ठीक है, इतना वाइड कीजिए। फॉर एग्जाम्पल 90 डिग्री हो पाता है तो 90 डिग्री, और उससे ज्यादा हो पाता है तो उससे ज्यादा। दोनों हैंड्स को ऐसे वाइड करना है। और ये जो एक्सरसाइज है वो खास करके हमारे कमर के साइड्स के जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए बहुत अच्छी रहती है। ये जो हाथ है राइट हैंड, वो राइट हैंड से लेफ्ट को टच करने की कोशिश करनी है, और दूसरा हैंड पीछे और वहां पे दृष्टि करनी है। और वैसे ही नेक्स्ट लेग, और जो हाथ पीछे है वहां पे दृष्टि करनी है। ठीक है, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। रिलैक्स। चलिए अब हम आसन की ओर जाते हैं। ये जो एक्सरसाइज है अगर आसन के पूर्व में, आसन के पहले कर लेते हैं हम, तो खास करके जब हम आसन करते हैं उसके लिए ये सभी एक्सरसाइज बहुत ही बेस्ट रहती है, क्योंकि ये सब एक्सरसाइज को वार्म अप एक्सरसाइज भी बोलते हैं। जब हम आसन करते हैं उससे पहले थोड़ा वार्म अप एक्सरसाइज हो जाता है तो आसन करने में कोई दिक्कत नहीं रहती है, आसन आसानी से हो पाता है। चलिए अर्ध पद्मासन, ऐसे एक पैर को ऊपर रखिए और एक पैर को नीचे। अगर आप पद्मासन कर सकते हैं तो पद्मासन भी कर लेना, मगर सीनियर सिटीजन के लिए खास करके अर्ध पद्मासन बेस्ट रहता है। ऐसे अर्ध पद्मासन करना है। दोनों हाथों की उंगली और अंगूठे को ऐसे संपुट कीजिए ज्ञान मुद्रा में, और दोनों को घुटनों की ओर टेक दीजिए। दोनों आंखें बंद। एक गहरी लंबी सांस, और पूरी की पूरी सांस धीरे 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 बाहर निकालिए। फिर से एक बार सांस लीजिए, और अब सांस छोड़ते हुए एक साथ 3 बार हम ओमकार का नाद करेंगे। ओ
गहरी लंबी सांस, दोनों आंखें बंद ही रखें। थोड़ी देर सांस को छाती में रोक के रखिए। धीरे धीरे ब्रेथ आउट। फिर से एक बार टेक अ डीप ब्रेथ। दोनों हाथों को ऐसे खींचिए और दोनों हथेलियों को दोनों आंखों के ऊपर रखें। ऑन योर फुल फेस, गर्दन पे और धीरे से दोनों आंखें खोलिए। नमस्कार। चलिए अब हम थोड़े आसन जान लेते हैं कि जिनसे हमारी इम्यूनो सिस्टम बूस्ट हो। थोड़े छोटे मोटे जो एज बढ़ती है और उससे जो छोटे मोटे रोग उत्पन्न होते हैं उससे कैसे लड़ते हैं वो भी आज हम 3 या 4 आसन से जानेंगे। पहला आसन आज हम करने वाले हैं वो है गौमुख आसन। इस आसन में हमारी स्थिति गाय के मुख जैसी होती है और इस आसन का फायदा ये है कि ये आसन से जिसको भी प्रोस्टेट की तकलीफ हो वो तकलीफ के लिए ये आसन रामबाण इलाज है। और साथों साथ जिसे भी फ्रोजन शोल्डर्स की तकलीफ हो उसके लिए भी यह आसन बहुत ही उपयोगी है। देख लीजिए कैसे करना है। पहले जो राइट लेग है वो राइट लेग को एकदम ऐसे रखना है और उसके नीचे लेफ्ट लेग को रखना है। मैं आपको परफेक्ट पोजीशन दिखा रहा हूं। अगर आप ये इतना यहाँ पे आके आप अटक जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपको सिर्फ प्रयास करना है कि दोनों घुटने ऐसे सेंटर में आए। ठीक है, दोनों पैर को ऐसे जैसे कि गाय के कान हो। और अब जो पैर ऊपर है वो हाथ को ऐसे ऊपर लेना है और जो पैर नीचे है वो हाथ ऐसे नीचे जाना चाहिए और पीछे से दोनों हाथों को पकड़ने की कोशिश करनी है। ऐसे यह हाथ ऊपर से आया और ये हाथ नीचे से। ठीक है, और यहाँ पे दोनों का मिलन हुआ। ऐसे पकड़ लेना है और कोहनी एकदम सीधी रहनी चाहिए। ठीक है, और रिलैक्स। ऐसा ही दूसरे पैर से हम करेंगे। अब जो पैर ऊपर था उस पैर को नीचे रखना है, जस्ट लाइक दिस। इस पैर को आपने ऊपर ले लिया। नाउ इट्स टर्न ऑफ लेफ्ट लेग टू बी ऑन अपर। याद रहे ऐसी कोशिश करनी है कि दोनों घुटने सीधी लाइन में रहे। अब लेफ्ट हैंड को ऊपर और राइट हैंड को नीचे से ऐसे पकड़ लेना है। कोहनी एकदम सीधी, मस्तक एकदम सीधा, ऐसे नीचे झुका हुआ नहीं, ऐसे सीधा रखना है। सांसों-सांस की क्रिया इसमें नॉर्मल रहेगी। ठीक है, जिसको भी फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ हो और रक्तक जो बोलते हैं, ये गर्दन थोड़ी टेढ़ी हो जाती है सोने में। कई देर रॉन्ग मेथड से जब हम सो जाते हैं तब ज्यादातर होता है कि गर्दन ऐसे टेढ़ी की टेढ़ी रहती है और तब जब ये आसन करते हैं हम तो इस आसन से वो गर्दन की तकलीफ भी दूर हो जाती है। और दूसरा, हैंड में यहाँ पे एग्जैक्टली ये जो छोटी उंगली है उसके नीचे यहाँ पे पॉइंट है। अगर इस पॉइंट को हम दबाते हैं तो वो जो शोल्डर्स की और गर्दन टेढ़ी हो जाती है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं क्योंकि हम गुजरात से है। तो फिर अगर हम ये पॉइंट दबाते हैं तो वो शोल्डर्स की जो तकलीफ है वो भी दूर हो जाती है और गर्दन की जो तकलीफ है विथ इन सेकेंड्स आपने ये दबाया, 30 सेकेंड्स दबाना है 3 टाइम। 3 टाइम दबाने के तुरंत ही वो गर्दन की तकलीफ चली जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आसन पे हम जाते हैं। आसन का नाम है भुजंग आसन। यह आसन खास करके जिसको भी वुमेन्स के लिए यह आसन बहुत ही बेस्ट है। और ये जो चेस्ट है वो हमारी ब्रीथिंग की जो प्रोसेस है, डीप ब्रीथिंग,
चेस्ट के सांस लेने की जो क्षमता है उसे ये भुजंगासन बढ़ाता है। चलिए, पेट के बल पर ऐसे लेट जाना है। ऐसे लेट गए पेट के बल पर और दोनों हाथ को छाती के एग्जैक्ट पास रखना है। यहाँ पे एक गहरी लंबी सांस लेते हुए सांस को रोकते हुए ऊपर की ओर, जितना ऊपर जा सके उतना ऊपर जाना है और गर्दन को पीछे की ओर झुकाना है। सांस को रोक के रखे और रिलैक्स। ये जो आसन है वो कम से कम 10 से 15 सेकंड तक टिकाना है और आसन फिनिश हो जाने के बाद ऐसे नॉर्मल पोजीशन में आना है। ठीक है, अब दूसरा आसन जो हम करने जा रहे हैं वो भी खास करके चेस्ट की ब्रीथिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए ही है। दोनों हाथ को ऐसे रखना है और गहरी लंबी सांस लेते हुए विदाउट सपोर्ट ऑफ योर हैंड्स ऐसे ऊपर उठना है। यह भुजंगासन का दूसरा प्रकार है। खास करके जिसको भी पीठ का दर्द हो, कमर दर्द हो, उसके लिए ये आसन रामबाण इलाज है, अक्षर औषधि है ये आसन। रिलैक्स, धीरे से नीचे, थोड़ी देर आराम। गहरी लंबी सांस लेते जाइए। चलिए दूसरे आसन की ओर जाते हैं। अब हमें पीठ के बल पर लेट जाना है, जस्ट लाइक दिस। ओके, हम ये जो आसन करने जा रहे हैं ये आसन खास करके अजीर्ण जिसको भी रहता है और कब्जियत की तकलीफ जिसको भी है, साथों साथ ये आसन आज जो ये कोविड-19 की प्रॉब्लम जो है, जो इम्यूनो सिस्टम जिसकी कमजोर हो उसे ये ज्यादा असर करता है। तो ये आसन जो है वो इम्यूनो सिस्टम भी बूस्ट करता है, साथों साथ अजीर्ण की तकलीफ हो वो भी दूर करता है और कब्जियत, कब्ज जिसको रहता हो, कॉन्स्टिपेशन जो बोलते हैं, तो उसे भी ये दूर करता है। गहरी लंबी सांस लेते हुए सांस को आधी बाहर निकालनी है, आधी पेट में रखनी है और 45 डिग्री दोनों पैर ऊंचे करने हैं। यह आसन 7 से 10 सेकंड तक टिकाना है और जिसे भी वेट लॉस करना हो उसके लिए भी यह आसन बहुत ही उपयोगी है। रिलैक्स, एकदम धीरे से नीचे, थोड़ी देर शवासन में रहे। चलिए अब एक लास्ट आसन जो है, जो कि हमारे बैलेंसिंग के लिए बहुत ही उपयोगी है। खास करके जब उम्र हमारी बढ़ती है तब चलने में और माइंड के बैलेंस में सभी प्रकार से थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती है। मगर ये जो स्टैंडिंग पोजीशन वाला आसन है, ये आसन खास करके बैलेंसिंग भी बढ़ाता है और साथों साथ माइंड की स्ट्रेंथनेस भी बढ़ाता है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। आसन का नाम है ताड़ासन या फिर वृक्षासन, जो भी हम बोले, ठीक है। ऐसे पैर के बल पर खड़े हो जाना है। आसन का नाम जो मैंने बताया, ताड़ासन या वृक्षासन, कुछ भी आप कह सकते हो सके तो स्टार्टिंग में आप इस वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हो। यह आसन जैसे कि बताया बैलेंसिंग के लिए बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही उपयोगी है। यह जो हाथ है, पैर है, फर्स्ट राइट लेग से हम करेंगे, उसको एग्जैक्ट ऐसे लेफ्ट लेग के मूल पे रखना है, ठीक है। और दोनों हाथ को ऐसे राउंड में से लेते हुए ऊपर की ओर नमस्कार मुद्रा करनी है और हो सके उतना ऊपर की ओर खींचना है। दृष्टि हमारी कोई भी एक पॉइंट पे स्थिर करनी है। रिलैक्स, धीरे से राउंड लेते हुए
नीचे की ओर। ऐसा ही अब दूसरे पैर से भी करना है। लेफ्ट लेग को लीजिए और उसको राइट लेग के एकदम मूल पे रखें और दोनों हाथ को बाजू से फैलाते हुए राउंड अप करके ऊपर की ओर। नमस्कार मुद्रा, पूरा का पूरा शरीर ऊपर की ओर खींचे एंड धीरे से नीचे रिलैक्स। चलिए अब बैठ जाते हैं। कहीं नहीं कटिंग करना ये आम आवश्य बापू। डन। अब हम थोड़े प्राणायाम के माध्यम से ऑक्सीजन का इंटेक कैसे ज्यादा हो, हमारे फेफड़े की जो सांस लेने की क्षमता है वो कैसे बढ़ती है, और साथों साथ हमारी इम्यूनो सिस्टम भी इस प्राणायाम के माध्यम से और थोड़ी ब्रीथिंग टेक्निक्स के माध्यम से कैसे बढ़ती है वो जानेंगे। पहले पद्मासन में ऐसे बैठ जाइए। जिसको भी पद्मासन न हो वो अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकता है। स्टार्टिंग हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम से। ये कपालभाति प्राणायाम है वो खास करके हमारी जो पेट में कोई भी गड़बड़ी या तकलीफ हो या फिर वायु की जो तकलीफ हो उसे दूर करने में ये बहुत ही फायदेमंद रहता है। और साथों साथ कपाल यानी कि मस्तक और भाति यानी कि प्रकाश हमारे माइंड की जो क्षमता है उसे भी बढ़ाता है, मेमोरी पावर को भी बढ़ाता है। छोटे बच्चे, जुआन या फिर वृद्ध कोई भी ये प्राणायाम को कर सकता है। ठीक है, कपालभाति प्राणायाम में क्या करना है देख लीजिए। ये जो हमारा पेट है हमें केवल सांस बाहर निकालनी है, लाइक दिस। सांस लेने की कोशिश नहीं करनी है, ऑटोमेटिक हमारी सिस्टम सांस ले लेगी। हमें केवल सांस बाहर निकालना है। और हम सीनियर है तो फिर हमें 1 सेकेंड में एक ही स्ट्रोक लेना है और ऐसा 1 मिनट करना है कंटिन्यूअस। ऐसे 3 राउंड करने का है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। रिलैक्स, एक गहरी लंबी सांस और पूरी की पूरी सांस बाहर निकालिए। धीरे से दोनों आंखें खोलिए। अब मैंने जो बोला ब्रीथिंग टेक्निक्स जो थोड़ी है वो ब्रीथिंग टेक्निक्स करेंगे और उसके बाद में हम अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी और लास्ट में ओमकार से हम अपना सेशन फिनिश करेंगे। ये जो ब्रीथिंग टेक्निक है खास करके हमारी जो लंग्स में 2 प्रकार होते हैं, लोअर लंग्स और अपर लंग्स। होता क्या है, हम सांस लेते हैं और छोड़ देते हैं। उसमें क्या होता है, सिर्फ हमारे अपर लंग्स है वो ही इसमें एक्टिव रहते हैं और जो लोअर लंग्स है वो एक्टिव नहीं रहते हैं। अगर कोई पेट से सांस ले रहा है तो उसे क्या होता है, केवल लोअर लंग्स है वही एक्टिव रहते हैं, अपर लंग्स है वो ऐसे के ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो फिर ये जो टेक्निक्स है लोअर ब्रीथिंग एंड अपर ब्रीथिंग, ये टेक्निक्स से हम फेफड़े के जो 2 भाग है अपर और लोअर दोनों को एक्टिव कर सकेंगे। दोनों हाथ को ऐसे रखना है और यहाँ पे पेट के ऊपर रखना है। जब हम सांस लेते हैं तब हमारा पेट फूलना चाहिए और सांस छोड़ते हैं तब पेट ही अंदर जाना चाहिए। चेस्ट को वही स्थिति में रहने देना है। ठीक है, ऐसा 6 बार करना है। चलिए, गहरी लंबी सांस और पेट फूलना चाहिए।
अगेन सांस को छोड़ते हुए पेट को अंदर, वापिस सांस लेते हुए पेट को बाहर लाइए और सांस छोड़ते हुए पेट अंदर, वापिस सांस लेते हुए पेट बाहर और छोड़ते हुए पेट अंदर। अगेन पेट बाहर और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर। अब दोनों हाथ को चेस्ट के ऊपर रखें एंड with taking a deep breath, raise your chest up. छाती को ऊपर की ओर फुलाइए और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। Again take a deep breath and breathe out. Take a deep breath and chest up. Breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in, chest up, and breathe out, chest down. Relax. अब जो प्राणायाम है, ये प्राणायाम का नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसे प्राणायाम का द किंग यानी कि राजा कहा जाता है, क्योंकि इस प्राणायाम से हमारे शरीर में जितनी भी नाड़ियां है, ये सभी नाड़ियां एकदम शुद्ध हो जाती है। इवन हमारे पैर की जो लास्ट उंगली है वहां तक इस प्राणायाम से ऑक्सीजन पहुंच जाती है और इस प्राणायाम से शरीर की जितनी भी तकलीफ है वो सारी की सारी तकलीफें दूर हो जाती है। साथों साथ अगर हमारे माइंड को शांत और काम करना हो तो उसमें भी ये जो प्राणायाम है बहुत फायदेमंद होता है। साथों साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि जो दुर्गुण है, ये सभी दुर्गुण भी, दोषों भी इस प्राणायाम से नष्ट हो जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करने हैं ये प्राणायाम। पहले राइट हैंड के अंगूठे से ये राइट नॉस्ट्रिल्स जो है उसे दबाना है और पूरी की पूरी सांस लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालनी है और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर लेनी है। दोनों नाक को बंद करके सांस को अंदर रोक के रखने की है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालना है। फिर अगेन सांस को बाहर निकालते हुए ही पेट को खाली रखते हुए दोनों ही नाकों को बंद करना है और सांस पूरी की पूरी बाहर। वापिस राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेनी है, सांस को रोक के रखना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालना है। ये प्राणायाम का एक राउंड हुआ। ऐसे स्टार्टिंग में कम से कम 3 राउंड तो हमें अवश्य करने ही है और जितना हो सके इतना हम इसे टाइम भी बढ़ा सकते हैं। यानी कि स्टार्टिंग हमने 3 से किया तो जितना हम कर सके ज्यादा राउंड उतना ही ज्यादा फायदेमंद हमारे लिए है। चलिए एक और बार साथ में करते हैं। इसका रेशियो ये होता है 2 काउंट से सांस अंदर लेने की, 3 काउंट सांस रोकने की, 4 काउंट सांस बाहर निकालने की, वापिस 2 काउंट से सांस अंदर लेने की, 3 काउंट रोकने का और 4 काउंट से दूसरी नॉस्ट्रिल से बाहर निकालने का। चलिए करते हैं साथ में। दोनों नाके को बंद करें,
रिलैक्स। एकदम धीरे से दोनों आंखें खोलिए। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम से खास करके मस्तिष्क में जितने भी मर्म पॉइंट्स है, ये सभी मर्म पॉइंट्स पे ये जो भ्रामरी प्राणायाम है वो वाइब्रेशंस डालता है, जिससे कि हमारे खास करके ज़्यादा तक साइनस की जो प्रॉब्लम्स रहती है, ये सभी प्रॉब्लम्स सिर्फ ये भ्रामरी प्राणायाम से दूर हो जाती है। कैसे करना है देख लीजिए। दोनों अंगूठे जो है उससे दोनों कान ऐसे बंद कर देने हैं। फिर ये जो पहली उंगली है उसे कपाल के ऊपर ऐसे रखनी है, दूसरी उंगली को दोनों आंखों के ऊपर, तीसरी उंगली को दोनों नाक के बाजू में और चौथी उंगली को दाढ़ी के ऊपर रखनी है एग्जैक्ट ऐसे। और फिर एक गहरी लंबी सांस लेते हुए जैसे भंवरा गुंजराव करता है वैसे गुंजराव करना है। दोनों आंखें को बंद ही रखें। एक गहरी लंबी सांस, पूरी की पूरी सांस एकदम धीरे से बाहर निकालिए। फिर एक बार गहरी लंबी सांस लेते हुए दोनों हाथों की पहली उंगली और अंगूठे दोनों का संपुट कीजिए और घुटने पर रख दीजिए। लंबी सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए एक साथ ओमकार का नाद करना है। दोनों आंखें को बंद ही रखें। गहरी लंबी सांस लेते हुए दोनों हथेलियों को एक दूसरे के साथ घर्षण करवाइए। दोनों हथेलियां को दोनों आंखों के ऊपर रख के थोड़ा प्रेशर दीजिए पूरे चेहरे पे, गर्दन पे और पूरे शरीर पे दोनों हाथों को घुमाइए, स्पर्श करवाइए। धीरे से दोनों आंखें खोलिए। नमस्कार। तो ये था हमारी इम्यूनो सिस्टम कैसे बढ़ती है, सांसों की ऑक्सीजन लेने की क्षमता है, यानी कि हमारे फेफड़े की क्षमता कैसे बढ़ती है
और थोड़े छोटे मोटे रोगों का इलाज योग, प्राणायाम और छोटी मोटी एक्सरसाइज के द्वारा। अगर आपको ये अच्छा लगा और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारी चैनल है गुरुकुल योगा, उसे अवश्य विजिट कीजिए। कुछ भी प्रश्न हो तो उसमें कमेंट में आप प्रश्न भी लिख सकते हैं, आपका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। नमस्कार, जय स्वामीनारायण। I would like to thank your Swami Yogdarshan Das Ji for demonstrating us and telling us the benefits of pranayama and different yogic kriyas. Moving on, I would request Sri Pratik Pathak, Director MLDC, to please join us on screen and tell us the positive attitude, how we can develop positive attitude and some exercises, and of course something which is very, very important, something which has grown substantially over the years, over the past years, meditation. Something which has brought the heart and soul closer, something which is, something which has brought us closer to the world and to our inner selves at the same time. Over to you, Sri Pratik Pathak, Director MLDC. नमस्कार, आप सभी को योगा डे 21 जून इस दिवस में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम प्रतीक पाठक है, मैं एक स्ट्रेस मैनेजमेंट कोच हूँ और आपका मैं स्वागत करता हूँ योगा डे में। और योगा डे में जैसा कि हमें बताया जाता है कि हमको स्वस्थ रहना है, हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है, हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, और कैसे ध्यान के द्वारा हम गहरे अपने अंदर में उतर के अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ करते हैं। तो आइए हम पहले चरण में जाते हैं, जो कि है हम शारीरिक रूप से कैसे स्वस्थ रहे। तो जो मुझे हेल्प करता है वो मैं आपको बता सकता हूँ और बताना चाहूंगा, वो है हठ योगा स्ट्रेचेस। तो शरीर में जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं, सर से लेकर पैर तक, हाथों में, पैरों में, जितने भी जॉइंट्स को हम बंद करते हैं और खोलते हैं तो उसमें खून का जो प्रवाह है वो जाता है और शरीर जो है लचीलापन उसमें बना रहता है और हम ज्यादा लंबे समय तक उसमें स्वस्थ रह सकते हैं, उसके साथ में रहेंगे। तो ये हम हर रोज कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, अपने स्थान पर आप खड़े हो जाएं ताड़ासन में। ओके, जैसे देखिए कि 1 फीट की दूरी पर आपके दोनों नितंबों के नीचे आपके दोनों पैर हैं। अपने दोनों हाथों को सामने लेकर आए। शुरुआत करते हैं उंगलियों से, ऐसा बंद करें और खोले। तो जो उंगलियां हैं उसके बीच में जो तनाव है उसको हम खोलते हैं और बंद करते हैं। उसी तरह रिस्ट को हम खोलते हैं, बंद करते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और इस तरह हम कलाइयों को भी ऊपर नीचे करते हैं। तो उंगलियां और आपकी कलाई, इसमें घुमाव से हम घुमाते हैं तो इसमें खून का प्रवाह जाता है और अकड़न और जकड़न जाती है। तो ये रही हमारी कलाइयां और हाथ। ठीक है, फिर हम आते हैं अपनी कोहनी पर। तो बायां हाथ दाएं कंधे के ऊपर और इस तरह से हाथों को पीछे करते हुए ऐसे करेंगे तो हम कोहनियों को भी मोड़ लिया है और कंधे के पीछे जो हमारा शोल्डर ब्लेड है वो भी बंद होता है और खुलता है। फिर रिलीज करें। दूसरा हाथ अपने कंधों के ऊपर इस तरह से हाथ को पकड़े और फिर सांस लेते रहे और छोड़ दें। आपको मुस्कुराते रहना है और फिर अपने हाथों को इस तरह से आपके कंधों के ऊपर नीचे इस तरह से घुमाव करना है। तो जो भी आपका स्पॉन्डिलाइटिस है, इनको बीमारी है इसकी या इससे परेशान है, तो ये करने से इसको आपको काफी लाभ होगा। इस तरह से आगे पीछे करके 10 से 12 बार जरूर करना है। नीचे छोड़े, हाथों को सामने लाते हुए सांस भरे, सांस छोड़ते हुए पीछे। ये हो गया हमारा स्पाइन ट्विस्ट। तो पीछे घूमे और अपने दाएं अंगूठे को देखें, फिर सांस भरते हुए आगे, फिर सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ और रुके। 4, 5, 6, 7 और आगे लेकर आए। फिर सांस छोड़ते हुए दाईं की ओर, सांस लेते रहे, सांस भरे, थोड़ा और घूमे, सांस छोड़ते हुए। 4, 5, 6, 7 सामने लेकर आए और उसी तरह से अब हम हाथ और कंधे और अपना स्पाइन ट्विस्ट है वो किया हमने। उसी तरह हाथों को इस तरह रखते हुए अपने गर्दन को मोड़ना है, आगे लाना है। तो गर्दन का जो जॉइंट है वो भी बंद होता है और खुलता है।
इस तरह से। तो 2-3 बार धीरे से करना है इसको। अब कमर का जो है हिस्सा है उसको हल्का सा इस तरह से करते हैं, तो जो मांसपेशियां हैं आपके लोअर बैक में वो भी, उसमें भी खिंचाव आता है, और झटका बिल्कुल नहीं देना, आपको ध्यान रखना। इस तरह से सेंटर, फिर दूसरी तरफ। तो ये तो रहा कमर का। अब उसके निचले भाग में जाना है, पैरों की तरफ। तो अपना दायां, जो अपना दाईं ओर है शरीर का, उसकी ओर अपना वजन लेकर जाना है। तो शिफ्ट योर वेट ऑन द राइट साइड, लिफ्ट योर लेफ्ट नी। इस तरह से करते हुए सामने देखें और सांस लेते रहें, और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। अब बाईं ओर अपना वेट को बाईं ओर करें और दायां घुटना को ऊपर, इस तरह से करते हुए। और फिर सांस छोड़ते हुए इस तरह से नीचे। तो ये तो घुटनों का रहा। अब आप टखनों को देखिए, जो टखने की ज्वाइंट है, तो इस तरह से पहले आगे आए पंजों की ओर, पीछे, फिर आप नीचे, इस तरह से आगे पीछे करें। तो जो आपका जो निचले का हिस्सा है, योर काफ मसल, योर शीन, तो जब हम उस पर ऊपर या नीचे ऐसे आते हैं, झुकते हैं, तो उसमें हम उसको और मजबूत करते हैं। और आपके जो टोज हैं, जो पंजे हैं, वो भी खुलते हैं और बंद होते हैं। और एड़ियों पे जब वजन आता है तो वो वहां की भी मांसपेशियां, उस पर भी काम होता है। और आपका जो जॉइंट है, एंकल्स, टखने, उसको भी हम उस पर काम करते हैं। तो ये रहा आपका निचला हिस्सा। उसके बाद सांस भरे और ऊपर देखें, और फिर 1, 2, 3 अब पूरा पंजों पर आ जाए। इससे ऊपर आप नहीं आ सकते हैं। बैलेंस बनाते हुए सांस लेते रहे, सीलिंग पर देखते रहे। अगर आप खुले में कर रहे हैं तो आकाश की ओर देखें, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाए। चलिए एक बार फिर सांस भरे, सर के ऊपर हाथ, फिर 1, फिर 2 और 3, फिर सीधे पंजों पर आ जाए और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। तो अभी हमने सर से पांव तक जितने भी जॉइंट्स हैं उसको खोला और बंद किया, खोला और बंद किया। इस तरह से हमारा खून का प्रवाह जाता है। तो ये जो स्ट्रेचेज हैं, ये आप कभी भी कर सकते हैं। जब आप खाना खाने के 2 घंटे के बाद कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, जब आपके उस समय है तब करें। तो आप देखेंगे कि आपका शरीर जो है वो बहुत ही स्वस्थ रहेगा, उनमें खून का प्रवाह रहेगा, और जो मांसपेशियां हैं उसको भी काम करने का अवसर मिलेगा। सो आई एम श्योर आपको रिफ्रेश हो रहा है, लग रहा है, अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। तो नेक्स्ट चरण में आते हैं जिसमें हम मेडिटेशन करेंगे। तो आइए अपने आप को तैयार करें। नमस्कार, एक बार फिर से। तो अब जैसे मैं नीचे बैठे हूँ, आलती पालती मार कर बैठ के नीचे हमने कुशन ले लिया है, और इस तरह से आप सुखासन में बैठ सकते हैं। तो ध्यान में सबसे अच्छा ये है कि जब हम ध्यान में करते हैं तो ध्यान हम कहाँ करें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम श्वास के द्वारा अपने आप को अंदर से जुड़ सकते हैं और अंदर गहराई में जा सकते हैं। और यहाँ मैंने एक सॉफ्ट म्यूजिक का भी हेल्प लिया है। तो आप चाहें तो तानपुरा, पियानो, बांसुरी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को ध्यान के लिए तैयार करते हुए अंदर जा सकते हैं। पहले ही सबसे पहली तैयारी आसन जो हमने कर ली है। तो इस तरह से बैठते हुए अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, अपने दोनों हाथ घुटनों पर चिन्ह मुद्रा में रख सकते हैं, या अपनी गोदी पर भी, और या फिर इस तरह से खुला हुआ हथेलियों से भी आप ऐसे रख सकते हैं, ताकि जो यूनिवर्स में जो पॉजिटिव पावर है वो आपके हाथों द्वारा पूरे शरीर में फैल रही है। तो अपनी आंखें बंद करें, 1-2 गहरी श्वास लें और छोड़ें। ज्यादा तनाव लगे तो नाक से सांस लें और मुंह से सांस छोड़ें। एक बार फिर नाक से सांस लें और मुंह से सांस छोड़ें, और फिर अपने आप को तैयार कर लें। नॉर्मल गति से सांस लें और अपना पूरा ध्यान अपने श्वास पे लेकर आए। और इमेजिन कीजिए कि जैसे आप सी शोर में, समुद्र के किनारे बैठे हैं, रेत पे बैठे हैं, ठंडी भीगी सी रेत, और ठंडी ठंडी हवा लहरों के साथ
आपके शरीर को, आपके मुखमंडल को सहला रही है और आप पूरी तरह धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं। समुद्र की लहरों को और हवा का सहारा लेते हुए अपने आप को अंतर की ओर मोड़ें। जिस तरह लहरें उठती हैं और थमती हैं, वैसे ही हमारे विचार हैं, वो लहरों की तरह ऊपर आते हैं फिर नीचे जाते हैं। इस तरह लहरों का काम है चढ़ना और उतरना, वैसे ही हमारा मन के विचार हैं, वो ऊपर उठते हैं और फिर चले जाते हैं। तो अपना ध्यान श्वास पे लाएं, अपने श्वास को महसूस करें। श्वास को देखिए कैसा ठंडी है या गर्म है। फील योर ब्रेथ। लेट योर माइंड बी रिलैक्स। और समुद्र की लहरों से जो स्वर निकल रहा है, साउंड आ रही है, जो म्यूजिक चल रहा है, उसका सहारा लेते हुए अंतर की ओर मुड़ते रहें। और ऐसा महसूस करें कि आप स्वयं अपने हृदय में अंदर उतर गए हैं। As if you are entering your own heart. And in your heart there is so much love, so much warmth. और जिस तरह से हार्ट पंप करता है ब्लड को, just feel that good vibration are spreading all over your body. पूरे शरीर में वो अच्छी तरंगे, सुंदर तरंगे पूरे शरीर में, आपके दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, आपके पेट के एरिया में, चेस्ट में, गर्दन में, फेस में, सर में, सब देखें कि वो जो सुंदर तरंगे हैं वो सब जगह जा रही हैं। एंड यू आर कंप्लीटली रिलैक्स। एंड बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रेथ एंड रिलैक्स। Opening your eyes, दोनों हाथ को रब करें और अपने मुंह पर, आंख पे इस तरह से मले। अपने कानों पर हाथ मले। अपने शरीर, सिर के ऊपर, सर का पिछला भाग, गर्दन पे। Bring your hand in नमस्ते। अपने नमस्ते के इस तरह पोस्चर में करते हुए अपने शरीर को धन्यवाद दें। थैंक यू माई बॉडी फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी। अपने शरीर को धन्यवाद दें कि इतने साल आपने मेरी देख रेख की और आगे भी आपका शरीर आपकी देख रेख करेगा। तो अपने शरीर को मनी मन धन्यवाद दें। अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने परिवार, सभी को धन्यवाद दें। और एक बार 3 बार बोलते हैं थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। कैसा लगा आपको? आई एम श्योर आप बड़ा रिलैक्स फील कर रहे होंगे मेरी तरह। तो आइए अब हम दूसरे चरण पे जाते हैं। अब हम मन के बारे में बात करेंगे। तो अपने आप को फिर से तैयार करते हैं। हमारा तीसरा चरण है हमारा मन।
our mind. So गौतम बुद्ध कहते हैं as you think so you become. जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। तो शरीर पर ध्यान देना है, अपनी सोल जो अंतरात्मा है उस पर भी जुड़ना है, तो उसके लिए हमने ध्यान किया। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा मन। तो जैसा हम सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं। सो अब देखिए कि दिन में हमारे जितने भी विचार होते हैं हम वैसा ही बर्ताव करते हैं, और डे इन डे आउट माने हर दिन हमारे जो विचार होते हैं हम वैसा ही बिहेव करते हैं। और हमारे विचार कैसे होते हैं, जैसा हम कल सोच रहे होते हैं। तो 70, 80 और 90% 90% जो थॉट्स हैं वो हमारे कल के ही विचार हैं, जैसा हम सोचते आए हैं। तो जो विचार हमारे अच्छे हैं तो उसे हमें पकड़ के रखना है, जो विचार अच्छे नहीं हैं तो घर में जैसे हम झाड़ू लगाते हैं वही वैसे ही हमें जो बुरे विचार हैं जो हमें किसी तरह जीवन में लाभ नहीं कर रहे हैं तो उसे हमें निकालना है। अब जो हमारा जो मन है ना, वो हमारा मन जो है एक उपजाऊ जमीन की तरह है। तो उसमें जब हम सुंदर फूल डालते हैं उसका बीज, तो वह सुंदर गुलाब का फूल निकल के आएगा। अगर आम का बीज डालते हैं तो आम का पेड़ जाएगा। उसी तरह हमारा मन है, जो भी विचार हम अंदर डालेंगे वही पेड़ बाहर निकल के आएगा। और यदि हम सोचेंगे कि हमारे मन में हम डालेंगे कि मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूं, मेरे में वो बात नहीं है, तो एक तरह से हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम हिला देते हैं। और अभी क्योंकि लॉकडाउन में इतना समय बिताया है तो हमें आगे भी अपने आप के जीवन को तैयारी करनी है। तो हमारा मन किस तरह से काम कर रहा है, हमारे विचार जो है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, ये हमें देखना है। तो हम देखेंगे कि हम किस तरह से हम अपने आप से क्या कह रहे हैं, एम आई गुड और आई एम नॉट गुड इनफ। ठीक है, तो जब आप सुबह सुबह उठेंगे तो अपने आप को बहुत सुंदर सुंदर विचार बोलना है। आई हैव व्हाट इट टेक्स, मेरे अंदर में वो बात है जो एक किसी भी निपुण व्यक्ति में रहती है। आई एम परफेक्ट, आई एम लविंग, आई एम काइंड एंड आई एम केयरिंग, आई गिव माई लव एंड रिस्पेक्ट टू एवरीबडी आई मीट। मैं सभी को अपना प्रेम और सम्मान देता हूँ। तो जब भी मैं अपने आप प्रेम और सम्मान सभी लोगों को देखता हूँ तो क्या मुझे वापस मिलेगा? यस ऑफ कोर्स। तो उसी तरह से हमारा मन है, हमारे वो मन है जब वो छोटा बीज से पेड़ बनता है, छोटा सा पौधा बनता है, फिर पौधा से थोड़ा पेड़ बनता है, उसमें फूल आते हैं। वैसे ही जो हमारे विचार हैं वो हमारा जीवन का निर्माण करते हैं। तो आप अच्छे अच्छे विचार अपने मन के प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने जो समाज या आसपास का समान एनवायरमेंट है उसमें अपने अपने विचार अच्छे रखें, ताकि आपका जीवन जो है वो बहुत सुंदर और सुशील और बहुत अच्छा बने। तो अपने आप को क्या कहना है? अपने आप को कहना है मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली आई एम इन गुड हेल्थ। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और सबसे पहले आप किसको देखते हैं? सबसे पहले आप स्वयं अपने आप को शीशे में देखते हैं। तो शीशे में देखकर बहुत अच्छी अच्छी बातें बोले और दिन की शुरुआत करें। तो जब आप मुंह धोए या ब्रश करें, देखेंगे कि आप अपने आप से क्या कह रहे हैं। सो से दैट आई लव यू। तो जब आप अपने आप से प्रेम करेंगे तभी ना सभी आपको प्रेम देंगे। सो लव योर सेल्फ, लव योर लाइफ एंड लव एवरीथिंग अराउंड यू। सो नेचर में जाएं, अच्छा खाएं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं और अपने मन के द्वारा अपने जीवन का सुंदर निर्माण करें। विश यू ऑल हैप्पी योगा डे एंड रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो आगे की वीडियो में हम बहुत सारी बातें करेंगे, बट क्योंकि आज योगा डे है तो आज हमने शरीर, मन और अपनी आत्मा के रूप में आत्मा से कैसे जुड़े उसके ऊपर हमने बात की। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी योगा डे। हैव अ वंडरफुल लाइफ। थैंक यू। नमस्कार। I'd like to thank each one of you for being so supportive and so cooperative. Once again, I would take this honor to thank Dr. Jawaharlal, President MLDC. I would like to thank Shri Pratik Pathak, Director MLDC.
I would like to thank Yogi Gulshan Kumar. I would like to thank Swami Yogdarshan Das Ji of Swami Narayan Gurukul Rajkot. I think all of us, as Narendra Modi ji also mentioned in his speeches during the COVID media releases, that it is time for all of us to be together, because together we can make a difference. So make sure that we incorporate and we inculcate yoga in our daily lives for a better future, for a better emotional and physical well-being. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती समय निकाल हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, MLDC के परिवार के साथ जुड़े, और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लोग आने वाले समय में आपके लिए लाते रहेंगे। आप ऐसे ही जुड़ते रहे। कोई भी आपको फीडबैक देना है आप हमें दे सकते हैं, एंड वी विल डेफिनेटली मेक श्योर दैट we will pay attention to those feedback, suggestions and your advices at the same time. Once again, this is your host Manvi Khilnani, and thank each one of you for joining us here. I wish you a great Father's Day, International Day of Yoga, and a bright future ahead. And there will be times when COVID will just be in the past. It will be a name in the past, and we are going to have a blast in the future. It will just be in the history, and we are going to celebrate the July, August, the 15th at the same time. So thank you so much, everyone. I wish you a great day ahead and a great future ahead.